Assalamu alaikum. This is class of artificial intelligence today 9 a.m. कल हमने 2 सेशन रखे थे, आज भी हम we are trying के we complete 2 sessions. आगे 2 छुट्टियां हैं, फिर आशूरे की, उसके बाद फिर फ्राइडे है, then weekend. So I will wait for some of the other students to join, then I'll start. Alright, आमिर, can you confirm me? आपको आवाज़ मेरी clearly आ रही है? मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी, बट देयर वर नो स्टूडेंट्स, सो आई वाज अवे एज वेल. आई जस्ट सॉ कि आपने ज्वाइन किया है. आई डोंट नो व्हाई बाकी नहीं आए अभी तक. सो प्लीज़ सेंड मी अ चैट बॉक्स मैसेज इफ़ माय वॉइस इज़ क्लियर ऑन योर साइड एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन. देन वी विल start and wrap up a few things. All right. अच्छा, कल की जो लैब थी, सेकंड सेशन की लैब, उसमें भी स्टूडेंट दे वर रिलक्टेंट टू कम. आई डोंट नो व्हाई, मे बी द टाइमिंग इशू इज़ देयर और नॉट, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं किया गया था कि अगर टाइमिंग इशू है तो. But I recorded the lecture. There was one student who joined and then left, so I recorded the lecture, and the lecture you can see on YouTube. So it should be your practice to watch the YouTube videos as well, at least some parts of that, so that you know what we are going to do in the next class. So कल का जो lecture था, मैं वहीं से बात start कर रहा हूँ. I don't know if you were in the last lecture or not, but regardless, I'm going to do a quick recap. And last lecture में बड़ी डिटेल में मैंने ये बात बताई थी कि we will be talking about something known as an evaluation function. हमने ये कहा था कि हम एक evaluation function बनाएंगे. evaluation function का मतलब ये है एक ऐसी calculation, एक ऐसा way of calculation जिसके थ्रू हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि किस नोड को पहले एक्सपेंड करना चाहिए. In the uniform cost search, we have used an evaluation function as well, and that evaluation function was g of n. G of n was the cost that you paid to move from the start state to that state, n, g of n. ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा काम किया था इसके ऊपर. as you can see, that we said कि for example the frontier has these nodes A, P, Q and C. UCS uses an evaluation function, and for example we made this algorithm. This is not actually an algorithm, we just named it Summer AI. Let's say कि this uses an algorithm, an evaluation function as well. So UCS का जो evaluation function है, that is G of n. G of n is the cost of reaching n from S, जो कि हम पहले पिछली दो चार क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं. और दिस algorithm that we designed, for example, uses the evaluation function as y of n. y of n क्या था? y of n was the chances of goal from n. So these were just some random variables, some random values. These are random values as well. The point was that there can be multiple function, x of a, y of a, z of a, g of n, of every node. For every node there can be some type of value. For example, the y value, y function of a is 4, the g function of a is 31, the x function of a is 7, the f function of a is 42, and so on. There can be multiple ways that you can define. Now, so we ended up at saying that there is a thing known as evaluation function on the basis of which we decide which node to expand the next. और यहीं से हम बात को स्टार्ट करते हैं आज दोबारा. एंड वी सेट के देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ वी कॉल्ड दैट रोमानिया प्रॉब्लम. अगर आपको याद हो तो इसमें एरिड वाज आवर स्टार्टिंग स्टेट एंड बुचारेस्ट वाज आवर एंडिंग स्टेट और गोल स्टेट. एंड वी एंडेड अप आवर लेक्चर इन लास्ट क्लास in this scenario that we said ke these are the values, these are the evaluation function values of this Romania problem. एंड इसमें जो लास्ट पॉइंट था जिसके ऊपर हमने काफ़ी ज़ोर देकर इस बात को समझने की कोशिश की थी was that के
evaluation function value of Bucharest is 0. So what was this heuristic function doing? हमने इस evaluation function को heuristic function का नाम दिया था. हमने कहा था कि ऐसा फंक्शन है, जिस तरह से भी हमने कहा कि x फंक्शन है, y फंक्शन है, g फंक्शन है, f फंक्शन है, हमने कहा कि एक फंक्शन है, इसको हम कहते हैं heuristic फंक्शन, उसको हम h फंक्शन कह लेते हैं. In our last slide we discussed about that for example there is an h function as well, and it estimates the cost of reaching goal from node n. कि इस स्पेसिफिक नोड से, कोई भी नोड आप उठा लें, कोई भी प्लेस है, वहाँ से गोल कितना दूर हो सकता है, कितनी कॉस्ट लग सकती है. द एस्टिमेशन, रिमेंबर दिस इज नॉट द एग्जैक्ट कॉस्ट, दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट. सो एस्टिमेशन फंक्शन और ह्यूरिस्टिक फंक्शन या एच फंक्शन is known as an evaluation function as well. So evaluation function can be any function. This h function is an evaluation function. In the uniform cost search, the evaluation function was g of n, and here is h of n. So let's talk about these values. So the point is that ARIDS SLD Bucharest straight line distance heuristic, इस चीज़ को एक मिनट के लिए इग्नोर करें कि what do you mean by straight line distance. I'm just saying that ARID की h of n वैल्यू है या h of ARID है 366. इसको आप ऐसे समझें कि we are saying that h of ARID is 366. इसी तरह h of से किसी और को लेते हैं, Zarind को लेते हैं. h of Zarind is what? 374, and so on. So you get the idea that these are the heuristic values or evaluation function values of these nodes. This इस node की ये है, इस node की ये है, इस node की ये है. This is, remember, 142 is the cost of moving from this place to this place. Remember, 211 is the cost of moving from this node to this node, and because this is not a directed graph, so from this to this node or from Bucharest to Figueres, the cost will still be 211. Now all of these heuristic function values will be used as an evaluation function values in upcoming informed search strategies. So what are we specially doing here is that first of all we are talking about greedy best first search. Greedy best first search works exactly like any other algorithm that we have worked up till now, especially exactly like uniform cost search. And what is the algorithm? If I go towards the start of this lecture again, and this was the algorithm कि initialize करें frontier को starting state से एक एक करके expand करते जाएं जब तक कि आपको goal नहीं मिल जाता, और जब goal मिल जाए तो you return the solution. explode state को हम because infinite loop ना आ जाए इस वजह से हम रखते ही हैं. अब इसी एल्गोरिदम में वही सर्च स्ट्रेटजी जो कि यूसीएस में हमने अप्लाई की थी, यूसीएस में हमने ये कहा था, या यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हमने ये कहा था कि वी विल एक्सपेंड द नोड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, कि भाई आपको ए तक पहुंचने में कितनी कॉस्ट लगी है अभी तक स्टार्ट स्टेट से, सी तक पहुंचने में कितनी कॉस्ट लगी है 32, पी तक पहुंचने में कितनी कॉस्ट लगी है 24. इस बेस पे आप डिसाइड करते थे कि अच्छा अब नेक्स्ट किस नोड को एक्सपेंड करना है, जो सबसे कम वैल्यू जिसकी होगी उसको आप एक्सपेंड करेंगे फ्रंटियर में हो अगर तो जो सबसे कम वाली है आप उसको एक्सपेंड कर रहे थे. दैट वाज यूसीएस. एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च भी काम करती है. ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या काम करती है? ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एग्जैक्टली यूसीएस की तरह ये काम करती है, बट इसमें सिर्फ एक चेंज है, वो ये कि अगर मैं यही सारी चीज़ें लिखूं, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट हेयर, और मैं इन सब का नाम रख दूं एच. रिमेंबर, नाम रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट डेफिनेशन ऑफ एच ऑफ एन इज नॉट, जी ऑफ एन वॉज वॉट? कॉस्ट ऑफ रीचिंग एन फ्रॉम एस, एंड दिस इज दी, अभी हमने जिस तरह ह्यूरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन कही, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीचिंग गोल फ्रॉम एन. एंड व्हाट वुड दैट बी? This is going to be estimated cost of reaching goal from
the start state, and this is what? Can you tell me by writing it on the chat box that what do you think this is? h of a 31 क्या है? Alright, so 31 is the estimated cost of reaching goal from the node A. 22 is the estimated, I mean these are not the exact values, these are the same values that we used as G. For example, मैं इसको थोड़ा सा change कर देता हूँ values को, so that you don't get confused के actually what we are talking about here. So for example, these are the values. So 43 is the estimated cost of reaching the goal state from A. So can you tell me कि अगर आपके पास ये सारी नोड्स हैं A, B, C, P, Q आपके फ्रंटियर में, let me copy and paste the frontier for this specific problem. Let's suppose आपका फ्रंटियर है ये A, B भी है, let's suppose P, Q and C. Can you tell me कि now this exercise is very important. Can you tell me कि मैं इनमें से किसको पहले एक्सपेंड करूं अगर मेरा इवैल्यूएशन फंक्शन h of n है तो? Can you tell me कि मुझे पहले किसको एक्सपेंड करना चाहिए इन पांचों नोड्स में से अगर मेरा इवैल्यूएशन फंक्शन h of n है तो? Come on, give me a guess. Alright, you are saying A, and can you tell me why? Any reason behind that? ठीक है, so just a guess. So understand this कि अगर आपके पास फ्रंटियर में कुछ नोड्स हैं तो उनमें अगर आप यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई कर रहे हैं, हमने ये देख चुके हैं कि ब्रेड फर्स्ट करेंगे तो हम पहले उसको एक्सपेंड करेंगे जो हमने पहले लिखी है या जो शैलोवेस्ट है, और अगर हम डेप्थ फर्स्ट कर रहे होंगे तो हम उसमें वो लिखेंगे जो कि सबसे डीपेस्ट लेवल पर है. यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हमने ये देखा कि हम उसको पहले एक्सपेंड करेंगे जिसके g of n सबसे कम है, यानी कि जिसमें द इवैल्यूएशन फंक्शन of f of n is g of n. The evaluation function of uniform cost search is g of n. ये भी मैं लिख देता हूँ so that we will come back to this over and over again. Evaluation function of uniform cost search, which is known as f of n, is g of n. So evaluation function of uniform cost search is g of n. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये तमाम नोड्स मौजूद हैं तो आप किसको पहले एक्सपेंड करेंगे, इवेल्युएट कैसे करेंगे कि किसको पहले होना चाहिए, तो दिस फंक्शन विल टेल यू कि किसको पहले एक्सपेंड होना चाहिए. और ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन इज द कॉस्ट ऑफ रीचिंग n फ्रॉम s. तो अगर मैं A पर पहुंचा हूं 31 कॉस्ट पे करके, अगर मैं B पर पहुंचा हूं 22 कॉस्ट पे करके, एंड सो ऑन Q पे पहुंचा हूं 35 कॉस्ट पे करके, तो मुझे इन सब में से अब पहले किसको एक्सपेंड करना चाहिए? द आंसर इज कि मुझे उसको एक्सपेंड करना चाहिए जहां पर मैं सबसे कम कॉस्ट देकर पहुंचा हूं, एंड दैट इज 22. B.
अब मैं बी को एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड का मतलब हम पिछली काफ़ी क्लासेस से देखते हुए आ रहे हैं कि क्या है। सो मैं बी को पहले एक्सपेंड करूंगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम नॉट वर्किंग ऑन यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, आई एम वर्किंग ऑन, हम जिस स्लाइड पर हैं वो क्या है, आई एम वर्किंग ऑन greedy best first search. I'm making it very very simple for you. So if अभी भी अगर आपको ये बात इशू करे और समझ में ना आए, so I don't think कि आपको किस तरह समझ आएगी. So understand this very carefully. I'm making this very very simpler for you. So evaluation function of uniform cost search, that is f of n. अच्छा, evaluation function को हम f of n कहते हैं. evaluation function को हम f of n कहते हैं. It's not the evaluation function of uniform cost search, it's just the evaluation function को हम f of n कहते हैं कि भाई किसी भी नोड की evaluation वैल्यू क्या है, उस वैल्यू की बेस पे आप डिसाइड करोगे कि उसको कब एक्सपेंड होना है. So the evaluation function f of n of uniform cost search is g of n, and the evaluation function of greedy best first search is not g of n but h of n. So अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये तमाम वैल्यूज हैं फ्रंटियर में a b p q c और मैं greedy best first search अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे पहले किसको एक्सपेंड करना चाहिए? अंडरस्टैंड दिस, मैं पहले उस नोड को एक्सपेंड करूंगा जिसकी इवैल्यूएशन फंक्शन की वैल्यू बेटर होगी. अब यहाँ पर बेटर का मतलब क्या लीस्ट है या मोस्ट है, ये समझने की ज़रूरत है. तो इट टेल्स मी कि अगर आपका इवैल्यूएशन फंक्शन इज h of n, विच मीन्स कि h of n इज व्हाट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीचिंग गोल फ्रॉम n. मेरे पास 5 नोड्स हैं, ये 5 नोड्स हैं, इसमें से मेरे पास ये वैल्यूज भी पड़ी हैं इन नोड्स की, और ये वैल्यूज क्या बता रही हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीचिंग गोल फ्रॉम दैट नोड, कि भाई अगर आप ए से चलते हो तो गोल इतनी कॉस्ट के बाद मिलेगा आपको. एस्टिमेशन है, अंदाजा कि भाई गोल इतनी कॉस्ट के बाद आपको मिल सकता है, कंफर्म नहीं है ये. बी की एस्टिमेशन क्या है? द एस्टिमेशन ऑफ रीचिंग द गोल स्टेट फ्रॉम बी इज 67, कि 67 कॉस्ट पे करके आपको गोल मिल सकता है, 87 कॉस्ट पे करके आपको गोल मिल सकता है अगर आप इस नोड के थ्रू जाते हो. तो इसको एक्सपेंड करते हो तो 6 कॉस्ट पे करने के बाद आपको मिल सकता है. क्यू के थ्रू जाते हो तो 98 कॉस्ट पे करने के बाद आपको मिल सकता है. नाउ आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, जो कि h of n के थ्रू जाएगा, इन सब में से किस नोड को वो पहले एक्सपेंड करेगा? गुड, वेरी गुड आमिर. सो होपफुली ये सारे इश्यूज, ये सारी बात जो मैंने की, इससे आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इट डिपेंड्स के इवैल्यूएशन फंक्शन क्या है. जिस तरह का इवैल्यूएशन फंक्शन होगा उस तरह से आपके नोड की एक्सपेंशन ऑर्डर चेंज होना शुरू हो जाएगी. अगर आप ये देखते हो कितनी कॉस्ट पे करके आ चुके हो, जो कि यूसीएस देखता है, यूसीएस ये देखता है कितनी कॉस्ट पे करके आ चुके हो, तो आप मिनिमम की तरफ जाओगे, यार सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर लगी हुई है, मैं वहाँ पर उस नोड को एक्सपेंड करूँगा. अगर आप h of n की तरफ जाते हो, यानी ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च की तरफ जाते हो, तो आप ये देखते हो कि अच्छा यार सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर मिल सकती है मुझे गोल की, गोल कितना करीब है, तो p से मुझे ज़्यादा करीब लग रहा है, इसलिए मैं p को एक्सपेंड करूँगा. लाइक आमिर इज सेइंग कि p को मुझे एक्सपेंड करना चाहिए बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट टू गोल. एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी सबसे कम है, इस वजह से मैं इस पे जाऊँगा. नाउ अंडरस्टैंड दिस कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इज़ लेसर, इट डजंट मीन कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट भी लेस होगी. बट एक्चुअल कॉस्ट हमें पता नहीं है ना. अगर हम एक्चुअल कॉस्ट पे जाते हैं तो फिर तो इंटेलिजेंस कोई ना हुई, फिर तो आप सिर्फ कैलकुलेट करने बैठ जाएं और आपको 1 साल लगेगा कैलकुलेट करने में एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और फिर उसके बाद आप 1 बाय 1 एक को देखेंगे कि क्या करना चाहिए.
So the evaluation function of best first search, greedy best first search, is h of n. अब इन दोनों चीज़ों पर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं कि एक्चुअली ये काम करेंगे किस तरह. सो आई विल स्विच बैक टू दिस थिंग. So expand the node that has the lowest value of heuristic function, the lowest value of estimation from that state to goal state, हम उसको expand करेंगे. जैसे कि अब इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पर शायद जूम ना कर सकूं, यहाँ पर ज़रा देखें. सो दिस इज़ द सेम प्रॉब्लम जो कि हम जिस पे हम काम कर रहे थे, एरिड टू बुचारेस्ट वाली. दिस इज़ अवर स्टार्ट स्टेट एंड वी हैव टू गो टू बुचारेस्ट. देयर आर मल्टीपल पाथ्स और हम वन बाय वन इसको एक्सपेंड करेंगे. अब हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ हैं. यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में हमारे पास हमें सिर्फ ये पता था कि एरिड से ज़ेरेंड या किसी भी नोड से किसी दूसरी नोड तक जाने की कॉस्ट कितनी लगेगी. लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास एक और वैल्यू भी आ गई है जिसको हम एच ऑफ एन कह रहे हैं. दिस इज़ एच ऑफ एन, कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि यहाँ से गोल कितना दूर हो सकता है, कि भाई सीबीयू से 253 कॉस्ट के बाद आ जाना चाहिए जो है आपका गोल. बट वी डोंट नो कि एक्चुअली इतनी ही कॉस्ट लगेगी. सो लेट्स स्टार्ट बाय अप्लाइंग द ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम. एरिड से हम स्टार्ट करेंगे. फ्रंटियर हमारा एरिड होगा सबसे पहले. उसके नीचे हम उसकी वैल्यू लिख रहे हैं जो कि कौन सी वैल्यू है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम इसको कह देते हैं, एच वैल्यू हम इसको कह देते हैं. एस्टिमेशन ऑफ, यानी कि हमें ये लग रहा है कि एरिड से 366 कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रीच द गोल. तो फ्रंटियर में चूंकि एक ही नोड है तो हम इसी को एक्सपेंड करेंगे, और जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इट बिकम्स दीज, इट स्पॉन्स दीज थ्री चिल्ड्रन, सीबीयू, टिमिसवारा एंड ज़ेरेंड. और इनकी वैल्यूज़ भी हमारे पास हैं कि भाई सीबीयू की 253 है, टिमिसवारा की 329 है एंड सो ऑन, ज़ेरेंड की 374 है. तो आपने ये भी एक्सपेंड कर दिया. अब आपके फ्रंटियर में 1 2 3 तीन वैल्यूज़ आ गई. वही पूरी एग्जांपल कि भाई एच ऑफ सीबीयू इज़ 253, एच ऑफ टिमिसवारा इज़ 329, एच ऑफ ज़ेरेंड इज़ 374. इन तीनों में से हम सीबीयू को सेलेक्ट करेंगे बिकॉज इट सीम्स लाइक कि इन तीनों में से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रीच द गोल सीबीयू की सबसे कम है. तो हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वी गेट दिस ट्री. Arid says CBU and then Arid, Fagaras or Adia. Now remember Timiswara and Zerend are still in the frontier. So they were still in the frontier. तो इन सब में से सबसे कम कॉस्ट किसकी है, 374, 329, 193, 380, 176, 176. तो फगारस को हम एक्सपेंड करते हैं. जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो वी दिस रिस्पॉन्स दीज टू चिल्ड्रन. सो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रीचिंग द गोल 253 है और इसकी 0 है, इसकी 380 है. अब हमारे पास फ्रंटियर में एरिड, सीबीयू, बुचारेस्ट, ओरेडिया, टिमिसवारा, ज़ेरेंड ये सब हैं. अब हमारे पास जब बुचारेस्ट आया है, अब इन सब में से हम वो सेलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू सबसे कम है. तो किसकी वैल्यू सबसे कम है, ज़ीरो इज़ द लीस्ट वैल्यू, राइट. सो जो ज़ीरो वैल्यू है दैट इज़ ऑफ बुचारेस्ट. तो अगर ज़ीरो मिल जाएगा हमें तो वी आर स्टिल ऑन द गोल. बुचारेस्ट जब हम कहेंगे, अच्छा रिमेंबर कि हम यहाँ पर भी वही एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम ये देखेंगे ज़ीरो से हमें सिर्फ ये पता लगा है कि इस नोड को एक्सपेंड करना चाहिए, कि इस नोड को एक्सपेंड करना चाहिए क्योंकि इसकी सबसे कम वैल्यू है. अब एक्सपेंशन से पहले हम परफॉर्म करेंगे गोल टेस्ट. हर नोड पे हम यही करते आ रहे हैं विदाउट इवन सेइंग इट, कि जब भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं हम ये चेक कर रहे हैं कहीं ये गोल तो नहीं था. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे इसको एक्सपेंड करने से पहले कि ये गोल तो नहीं है, और इफ दिस इज द गोल देन वी विल रिटर्न द गोल. सो यहाँ पर हमें जो सोल्यूशन मिला दैट बिकम्स एरिड टू सीबीयू, सीबीयू टू फगारस एंड फगारस टू बुचारेस्ट. तो ये जो आपको एल्गोरिदम मिला है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कैन यू टेल मी, कितनी टोटल कॉस्ट पे करके आप यहाँ तक आए हैं. लेट मी जूम इट आउट सो दैट यू कैन सी दी सोल्यूशन एज वेल एज. ये है जी सोल्यूशन और ये है ग्राफ. कैन यू टेल मी कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी इस सोल्यूशन के थ्रू बुचारेस्ट तक पहुंचने की. ऊपर एरिड ही है, मैं इसको छुपा रहा हूं ताकि आप वैल्यूज को क्लियरली देख सकें. दिस इज दी थिंग. कैन यू टेल मी कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी फ्रॉम एरिड टू बुचारेस्ट.
Okay, so not clearly visible. So what I'm trying to say is, ये मैंने शेयर भी की हुई है आपसे. You should read everything very clearly आफ्टर द लेक्चर. अपने पास खोल के एक एक चीज़ को देख लीजिएगा दोबारा से. बट माई पॉइंट इज़ कि एरिड से बुचारेस्ट तक आने का ये पाथ हमें मिला है इस ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट के थ्रू, जिसमें इसने ह्यूरिस्टिक वैल्यू की मिनिमम को उठाकर और उसको एक्सपेंड किया है वन बाय वन. द इवैल्यूएशन फंक्शन वाज ह्यूरिस्टिक फंक्शन. सो दिस इज द ह्यूरिस्टिक फंक्शन जिसके थ्रू हम एरिड से बुचारेस्ट, सीबीयू आए, सीबीयू से फगारस और फगारस से बुचारेस्ट, विच मीन्स हमने कौन सा पाथ लिया, एरिड से सीबीयू, सीबीयू से फगारस एंड फगारस से बुचारेस्ट. So it totally becomes around 140 plus 99 becomes 239, 240, 250, 450. The cost is 450. So अब मैं आपके सामने ज़रा रखता हूँ इस पूरे ग्राफ को. जो कॉस्ट हमें ग्रीडी बस फर्स्ट ने ढूंढ कर दी है, that is 450. Do you think that 450 is the correct or the least amount of path? ये पूरा ग्राफ आपके सामने अब विजिबल है. होपफुली आपको स्क्रीन और ये सारी चीज़ें विजिबल होंगी, नंबर्स वगैरह. डू यू थिंक एरिड से बुचारेस्ट जाने तक के लिए जो 450 कॉस्ट मुझे ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट ने ढूंढ कर दी है, इट इज़ द चीपेस्ट अमाउंट आई शुड बी एबल टू पे, या इससे भी कम कॉस्ट वाला कोई पाथ एग्जिस्ट करता है? लुक एट इट एंड टेल मी. सो यू आर सेइंग दैट ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च ने आपको वो पाथ ढूंढ कर दिया है जो कि सबसे करीब है, जो कि सबसे चीपेस्ट है. सो यू थिंक दैट एरिड टू सीबीयू, सीबीयू टू फगारस एंड फगारस टू बुचारेस्ट इज द चीपेस्ट पाथ. अगर मैं लेट सपोज ये पाथ लेता हूँ, एरिड टू सीबीयू, सीबीयू टू फगारस नहीं, सीबीयू टू आरवी, दिस सिटी रिमिनी सुविशिया, आरवी, एंड देन पिटेस्टी एंड देन बुचारेस्ट, इसका कंप्लीट कॉस्ट कितनी होगी? एरिड टू सीबीयू, सीबीयू टू देयर, देयर टू हेयर एंड हेयर टू बुचारेस्ट. What is the total cost of this? Add it out and tell me. It's not a straighter path. You are saying that it's a straight path, so it's easier or cheapest. Cheapest is the path which has the least amount of cost. It's not about a straight path or there are no turns and in any path. यहाँ पर भी turn नहीं है. Arid city में जो आ रहा है, this is a straight line, this is a straight line, this is a straight line, this everything is a straight line. So if you see that arid to CBU is 140 and 140, अगर मैं CBU से ये रास्ता ले लेता हूँ 80 वाला, so it becomes 220 and then 220 and 320, 317, 318 and 418. यहाँ पर कॉस्ट अगर मैं ये पाथ ले लेता हूँ एरिड से सीबीयू, सीबीयू से आरवी, आरवी से पिटेस्टी एंड पिटेस्टी से बुचारेस्ट, द कॉस्ट बिकम्स 418. जबकि जो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट ने मुझे एल्गोरिदम ने सोल्यूशन ढूंढ के दिया है, दैट इज एरिड टू सीबीयू, सीबीयू टू फगारस एंड फगारस टू बुचारेस्ट, जिसकी कॉस्ट 450 है. सो द कॉस्ट 450 इज नॉट द चीपेस्ट कॉस्ट दैट आई शुड बी एबल टू पे फ्रॉम एरिड टू बुचारेस्ट. एक छोटा पाथ भी एग्जिस्ट कर रहा है, छोटा नहीं सॉरी, चीपर पाथ भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो इट मीन्स दैट ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च बेशक एक अच्छा एल्गोरिदम लग रहा है, because it is looking for the estimated cost, but it is not always the better cost. क्योंकि ये मुझे वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ कर दे रहा जो कि एक क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिमल सोल्यूशन है. तो आपके लिए एक रीडिंग असाइनमेंट है, बल्कि एक एक्सरसाइज है, वो आप लोगों ने करनी है. काइंडली बाकी स्टूडेंट को भी ये बता दीजिएगा कि दिस इज़ अ रीडिंग असाइनमेंट जस्ट फॉर नाउ, दैट ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट के थ्रू मैंने अभी आपको ये करके दिखाया कि किस तरह से मैंने एक्सपेंड करके बुचारेस्ट तक पहुंचा हूँ.
यू हैव टू मेक जस्ट लाइक दिस ट्री, इसी तरह का एक ट्री आप बनाएंगे, एरिड से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन एक्सपेंड करते जाएंगे जब तक कि आप गोल पर नहीं पहुंचते, बट नॉट बाय यूजिंग ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, बल्कि बाय यूजिंग यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। आपने यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को यूज करना है, यानी कि फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि यहाँ पर आप h ऑफ n की बेस पे डिसाइड कर रहे होगे किसको पहले एक्सपेंड होना है, वहां पर आप g ऑफ n की बेस पे डिसाइड कर रहे होगे किसको पहले एक्सपेंड होना है। एंड g ऑफ n इज व्हाट, कि भाई यहाँ तक सीबीयू तक पहुंचने की कॉस्ट आपको कितनी लगी, दैट विल बी योर g ऑफ n। टिमिसोआरा तक पहुंचने की कितनी लगी, दैट विल बी योर g ऑफ टिमिसोआरा। और इस तरह g की बेस पर आप कैलकुलेट करोगे कि आपको किस नोड को पहले एक्सपेंड करना है। तो एक ही एक्सरसाइज आपने करनी है नेक्स्ट क्लास से पहले कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है उसको देखना है कि वो अगर उसके थ्रू मैं इस ग्राफ को एक्सपेंड करता हूं तो मुझे कौन सा पाथ मिलेगा। ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट की एक्सपेंशन ये आपके सामने है। यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच इज़ फ्रॉम 2 to 5। होपफुली मोर स्टूडेंट्स विल ज्वाइन इन दैट क्लास। अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और देन वी विल ज्वाइन आफ्टर 15-20 मिनट्स ब्रेक फॉर द लैब ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग हियर, और जो लैब होगी वो हम 15-20 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताता हूँ। आमिर, यू आर आस्किंग अबाउट व्हाट अबाउट मिड। मैं मिड एग्ज़ाम के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन होगी। बस आप ये समझ लें कि मिड एग्ज़ाम भी रिसेंटली तो मैंने प्लान नहीं किया है कि होगा, बट उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं अगर, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। देयर विल आल्सो बी अ असाइनमेंट इन नेक्स्ट क्लास, so please tell the students to join as much as they can, and we will talk about assignments and mid exam as well, and we will continue this lecture as well. You just have to work on the uniform cost search algorithm and its expansion of this graph. So thank you very much. Let's have a break and then we will join for artificial intelligence lab.